मैं भी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे आपके बीच आता हूँ और चाहूँगा कि आज आप मुख्यमंत्री जी से एकदम क्या बोले, मन की बात नहीं, योग की बात करिए। योग में मन, दिल, शरीर सब आ जाता है, तो योग की बात करिए। और सीधे इस योग में मैं बीच में नहीं आऊँगा। सवाल मुख्यमंत्री जी का पहला ऑब्वियसली, और फिर कुछ भी होगा तो इंटरेक्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप इतने दिन से योग करा रहे हो, महिलाओं को करा रहे हो, लोगों के पार्कों में करा रहे हो, अलग अलग जगह पे करा रहे हो। ऑफ कोर्स वीसी साहब ने कुछ चीज़ें डेटा के रूप में रखी, पर आपका एक्सपीरियंस क्या है? वहां से शुरू करते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप सिपाही हैं मुख्यमंत्री जी को सपने को जमीन तक ले जाने के, तो सिपाही का वहां का एक्सपीरियंस क्या है, ग्राउंड लेवल, वहां से हम शुरू करते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कर दीजिएगा पहले। Sir, myself Dr. Garima Bhatia. Sir, I am with this Delhi Ki Yogshala since last 1 year, and I have done this course. But sir, I have gained so much love and respect, and being a physiotherapist, I was towards the reactive healthcare, but now I have learned that preventive healthcare is much more important as compared to reactive healthcare. So in my classes, most of the people have gained not only strength, flexibility and endurance in their lifestyle, even they have bring a lot of changes in their preventive healthcare. For example, there is one person who suffered from liver cirrhosis, and doctor has told him that it's a stage 3 liver cirrhosis. And after being in 5 months of yoga, now recently he has gone through for LFT and KFT test, and now doctor told it's stage 1 liver cirrhosis, and it's very good. You should continue your yoga, and you are gain a lot of improvement. And sir, this gives me a lot of respect, love, and I must say that Delhi Ki Yogshala, which Delhi government has started, it's a great initiative and must bring revolutionary change in Delhi and makes the Delhi healthy, wealthy and fit. कितने लोग हैं आपकी क्लास में? Sir, 3 classes हैं, and in every class there are 28 to 30 people. अच्छा, तो people are increasing or some people? So people are increasing. People are increasing. Dropouts नहीं है ज़्यादा? नहीं sir, dropouts नहीं। ये जो सर का क्वेश्चन था, ये जो भी आगे आप बोले हैं वो बताते रहें कि कहाँ पे कितने लोगों को करा रहे हैं, कितनी क्लासेस ले रहे हैं, वो भी आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, तो फिर अच्छा लगेगा जानना। So I am taking classes in Dwarka. अच्छा, थैंक यू। अभी माइक किधर है जी? हाथ उठा दे जरा, खड़े हो जाएं। अच्छा, इधर दे दो आगे। सर नमस्कार सभी को। सर मेरा नाम मुजाहिद राइन है, मैं त्रिलोकपुर विधानसभा में चिल्ला डीडी जनता फ्लैट है, वहाँ पर क्लास ले रहा हूँ अभी। तो वहाँ का सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति थे अजय जेम्स नाम से, जो कि करीब 3 महीने पहले हमारे पास आए थे। तो वो बताते हैं कि उनकी तोंद काफ़ी निकली हुई थी, तो स्टेयरिंग पर रखकर गाड़ी चलाना, लेग को सीधा रखकर खाना खाते थे, फोल्ड भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से उन्होंने योगशाला ज्वाइन करी तो लगभग 10 किलो उनका वेट कम हुआ सर। हाई बीपी के पेशेंट थे, मना करने के बावजूद भी करते थे, लेकिन उनका बीपी कम हुआ सर। ऑफिस में चिड़चिड़ापन बताते हैं कि चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा आता था, वो भी उनका काफ़ी सर कम हुआ है। और सर उस क्लास में काफ़ी शुरू में 2, 3, 4 लोग थे जब स्टार्ट किया था, अभी वहाँ सर 30 क्रॉस कर चुका है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Good evening, sir. Sir, my name is Tanya, and I'm taking class in Mayur Vihar Phase 2 and in Phase 1. And there I want to share experience, sir. Although firstly I want to thank you for giving this opportunity so that I can help people, because I have a patient in my class. He was suffering from black fungus in 2nd wave, and he was having a problem in breathing as well. But when he started doing the yoga, now his breathing has also increased, flexibility, and he is very thankful to you, to Delhi Ki Yogshala, that he is able to do the exercise and everything. So I really thank you, sir, from his side and from my side as well, sir. Thank you so much. कितने लोग हैं आपकी क्लास में? Sir, in my class there are almost 25 to 30 people in both the classes. In Mayur Vihar Phase 2. Ideally maximum एक क्लास में कितने आप लोग हैंडल कर सकते हैं? Sir, maximum we can handle around 35 to more than people. 35 के करीब। Yes. आप लोगों के पास नॉर्मली जैसे 25 तो हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है मिनिमम,
लेकिन क्या है आपके पास संख्या, जैसे 35 बता रहे हैं, ऐसे ही बता दो। 180 118 वन क्लास, एक क्लास में, और आप हैंडल कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती? साउंड सिस्टम लगाते हो, कैसे करते हो? साउंड सिस्टम, अच्छा, 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 बहुत अच्छा, वेरी गुड। टीवी पे योग सभा कर, मैं योगशाला नहीं बोलूंगा, टीवी पे योग सभा करने वाले लोग कई टेंशन में आ जाएंगे इसको देख के। गुड, सो प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है आपका? थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर मैं दिल्ली की योगशाला का एक योग सेवक मनीष शर्मा। सर मेरी क्लास बुराड़ी और तिमारपुर DRDO में चल रही है। सर मेरी एक क्लास में अराउंड 15 to 20 पीपल आते हैं, जो कि महिलाएं हैं, अलग अलग उम्र की हैं, छोटी बड़े बुजुर्ग। और दूसरी है तिमारपुर की क्लास, जिसमें हर प्रकार के लोग आते हैं, ऑफिसर से लेके नॉर्मल सिविलियंस एंड एवरीवन। तो सर मेरे को उनसे सीखने को भी मिलता है, उनको सिखाने को भी मिलता है। सर आपका जो ये दिल्ली में योग फैलाने का जो एक आपका सपना था, उसको सैल्यूट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं। उससे सर मेरे को मेरे जीवन शैली में इतना अच्छा चेंज आ गया है, योग कराते कराते वो मेरे अंदर तक आ गया है, जिससे कि मैं अपने रिलेशन को बहुत अच्छा कर पाता हूँ, जिससे उस स्वभाव के से जिनको मैं कराता हूँ वो मेरे चेहरे पे एक्सप्रेस करता है, और वो मेरे को देखते हैं, और जब वो मेरी क्लास में आते हैं और जाते हैं, एक बहुत ही हैप्पीनेस के साथ क्लास को घर पे लेके जाते हैं। थैंक यू सर। तो ये 2 वे प्रोसेस चल रहा है? यस सर, 2 वे प्रोसेस। गुड। किधर है? और ये बीच में दे दो मैडम, आप खड़े हो। हाँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। मेरा आदरणीय नमस्कार सभी को। मेरा नाम गीतिका है। मैं रोहिणी में क्लास लेती हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग में 25 पीपल वर देयर, अब वहाँ पे 30-35 इतनी संख्या रहती है। सर हाई बीपी, थायराइड, सर्वाइकल, इनके केसेस तो नॉर्मली आते ही हैं, लेकिन आज तक जो मुझे अपनी सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट लगी वो ये थी कि मेरे पास एक साधक आते हैं रोहिणी में, जिन्हें कैंसर है, उसके साथ सिंगल किडनी पेशेंट है। उनकी हम बीमारी में तो पूर्ण रूप से सहायता नहीं कर सकते, लेकिन साइकोलॉजिकली उन्हें इतना बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से उनको नींद नहीं आती थी, वो खा नहीं पाते थे, पूरे दिन टेंशन, लेकिन योग ने उन्हें साइकोलॉजिकली इतना बेनिफिट किया है। और वो जब हमें ये बेनिफिट सुनाते हैं, फीडबैक्स देते हैं, तो सही में सर हम लोग इतना खुश होते हैं, मैं इतना खुश होती हूँ, इतना प्राउड फील होता है कि अगर मैं किसी और जॉब में होती या कुछ और कर रही होती, मेरे पास मॉनेटरी बेनिफिट तो ज़रूर होता है, लेकिन ये फीलिंग, ये रियलाइजेशन कभी भी नहीं होती। तो थैंक यू सो मच सर। आप में से कितने लोग मिडिल क्लास एरियाज में योग करा रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब एरियाज में योग करा रहे हैं? तो गरीब में भी 2-4 लोगों के गरीब एरियाज के एक्सपीरियंसेस, जैसे झुग्गी वाले, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है कि क्या वो समय निकाल पाते हैं कुछ उसके पीछे ले जाओ माइक, वहाँ सुमित उधर आपके पास। झुग्गी एरियाज में से किस किस्म के लोग आते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? आप जहाँ खड़े थे वहाँ पे एक मैडम हाथ उठा रही थी। कैसे डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा आपको पास आप थोड़ा आगे आ जाएं, वहाँ से शायद माइक की रेंज। नमस्कार सर। अरे वाह, अब आ गया। We are giving classes जहाँ पर almost 60 people आते हैं, we have to shout like that only. So thank you so much, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया सब। जो लोग शायद खाने और कपड़े को छोड़ के कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी आज अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। कहाँ पे करा रहे हो आप? सर मैं हरकेश नगर, श्याम नगर करवा रही हूँ, और उसके आसपास एरिया ऐसा है जहाँ बिल्कुल झुग्गी बसती है। तो झुग्गी के लोग आपके योगा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। वो स्पेशली ऐसी लेडीज़ जो कि अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं मॉर्निंग में, वहाँ पर खुद आके करती हैं। मतलब एक क्लास में वो खुद आती हैं और दूसरी क्लास में वो अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं। जो कि खाना बनाने वाली लेडीज़ हैं, या कहना चाहिए बिल्कुल लोअर क्लासेस, जो कहना चाहिए वो शायद अपनी दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोग भी कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं
बहुत उनके अंदर बेनिफिट्स उनको फील हुए हैं। मेरी क्लास में एक आंटी आती थी, मतलब एक लेडी है, बहुत बहुत बुजुर्ग हैं, जो कि बिल्कुल धीरे धीरे चलती थी। उनकी डिस्क में मैं लेके भी गई थी उनकी रिपोर्ट्स हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। उन्होंने बताया उनके डिस्क के बीच में गैप्स हैं, बट इन 3 months शी इज़ एबल टू नॉट इवन वॉक, बल्कि अब वो बहुत अच्छे से आसन्स भी करती हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस योग से हुआ है वो हमारे बुज़ुर्ग लोगों को हुआ है, वो पीढ़ी जिनकी वजह से हम खड़े हैं बेसिकली। तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उपेक्षित फील करते थे, बट आज वही लोग जब अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, जब अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को खुद ही, तो वो आज इतने आशीर्वाद देके जाते हैं, इतना अच्छा फील करते हैं, नॉट ओनली फिजिकली मेंटली, बल्कि वो समाज में भी अब अपने आप को वापस यूनाइट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भी कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप में हाथ उठाया था, पीछे उधर दे दो। यस, यू गेट अप, कैमरे के पीछे। यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, एक बार मैं चाह रहा हूँ कि जो सर ने क्वेश्चन किया कि जो लोग लोअर इनकम ग्रुप में झुग्गियों में करा रहे हैं, उनकी तरफ से भी कुछ फीडबैक आ जाए, कि रोहिणी, द्वारका, मयूर विहार आप लोगों ने बताया, बट जो झुग्गी इलाके हैं वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। नमस्कार। अच्छा, सर, हाँ, मैं दिलीप तिवारी। मेरी सर क्लास चलती है दिल्ली की योगशाला बसंत कुंज में, एक सर मछली पार्क है वहाँ पे चलती है। तो वहाँ पे सर कई तरह के कई सोसाइटियों से लोग आते हैं। तो कुछ लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, सर आपके चार्ज क्या हैं? तो मैं बताता हूँ, ये दिल्ली की योगशाला है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। आप सुबह सुबह आइए, मैट लेकर के मैं योग कराऊंगा आप सबको। तो बहुत सर खुश होते हैं लोग, और बहुत काफ़ी संख्या में लोग आना शुरू हुए हैं, जो कि बिल्कुल मतलब गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन उनको करा करके मुझे भी अच्छा लगता है, उन लोगों को भी सर अच्छा लगता है। थैंक यू सर। हाँ, ये टाइमिंग्स का क्या है? शाम को भी कई क्लासेस होती हैं? नहीं, ओनली मॉर्निंग। वो लोग चाह रहे हैं कि शाम को हो, तो शाम को भी हमें। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आप इसको और आगे बढ़ाना है तो 24 घंटे। आप लोग तो ऑनलाइन पे भी लगे हुए थे ना तब, जब हम लोगों ने कोविड के लॉकडाउन के दौरान में ऑनलाइन कराया था। तो कुछ और एक्सपीरियंस बताएं। एक चीज़ जो मैं सुनना जानना चाहूँगा, आप में से कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो आप लोगों ने शेयर किया था, क्योंकि अभी ये कितने दिन हो गए हम लोगों को करते हुए? लगभग नहीं, ये कराते हुए 6 महीने से लगभग सबका एक्सपीरियंस हो गया है। आज से 4-5 साल बाद ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा कि भाई कैसा एक्सपीरियंस था। जब शुरू किया तब लोगों का एटीट्यूड क्या था, क्योंकि एकदम दिल्ली की योगशाला दिल्ली में नई चीज़ थी और सरकार की तरफ से आई थी, तो शुरू में लोगों का एटीट्यूड क्या था? अब धीरे धीरे कुछ बदलता देखा हो, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ आप शेयर करना चाहते हो जो आप एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ यार एक बात मैं बताता हूँ? हाँ जी, पीछे, सबसे पीछे, कैमरे के पीछे। यस, थैंक यू सर। मेरा नाम आर्यन है और मेरी क्लास काका नगर और पंडारा रोड 2 जगह चलती है। सर काका नगर में मोस्टली दे आर IAS एंड IPS ऑफिसर। जब सर शुरू में स्टार्ट करा था ना, तो देवर लाइक 4 से 5 लोग आते थे। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, कोई फ्री में आके सिखा रहा है, कैसे ही सिखा रहा होगा, उसे क्या ही पता होगा। लेकिन सर जब धीरे धीरे सिखाया, उन लोगों ने अपने आपस में कमेटीज़ में बात करना स्टार्ट करा, उनको रिव्यूज़ अच्छे आने लगे। सर आज 20 to 25 पीपल रोज़ आते हैं। इवन ऐसा है कि वो बारिश के अंदर भी आने के लिए तैयार है कि सर हम प्लास्टिक शीट्स लेके आएंगे, आप आओ और हमें सिखाओ। सर उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूटर्स थे उनके पास, योगा के टीचर्स, उन्होंने वो छोड़ दिए। वो 20-20, 25-25 हज़ार देते थे उन्हें मंथली। कहते थे सर आप उनसे अच्छा सिखाते हो और हमें फ्री में सिखाते हो सर। और वहाँ पे मोस्टली साउथ इंडियन फैमिलीज़ हैं, और साउथ इंडियन फैमिलीज़ में सर एक लेडी ऐसी है, उन्हें अर्थराइटिस और माइग्रेन और फ्रोजन शोल्डर, तीनों चीज़ें थी, ठीक है। और उनको वेट लॉस करना था सर। लास्ट 3 महीने में मैंने उनकी तीनों चीज़ें और 8 किलो वेट सब लॉस करवा दिया, और वो आज इतनी ज़्यादा खुश है ना सर, बहुत वेरी ज़्यादा। गुड। ये इंटरेस्टिंग था कि शुरू में, वही अधिकतर लोगों का ये होगा कि शुरू में थोड़ा लोगों के अंदर विश्वास कम होगा कि भाई ये सीरियस है, बच्चे से आ गए हैं,
ज़्यादातर ऐसे ही दिख रहे हैं। गुड। और कोई कुछ? हाँ, आगे ले आओ माइक, ये भी काफ़ी देर। यू आप खड़े हो जाओ, 1 मिनट आ जाएगा अब तक माइक। हाँ, माइक आ रहा है अब तक। सर बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सविता वर्मा क्लास ले रही हूँ सर मयूर विहार फेज़ 1 में। सर मेरा एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने पूछा कि शुरू में कैसा रहा, शुरू में बहुत अच्छा रहा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वाकई में शारीरिक, मानसिक और हम कहेंगे सर आर्थिक लेवल पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सर एक चीज़, सबकी एक टेंशन थी, मेरी 2 क्लास फिलहाल चल रही हैं और दोनों ही जगह कॉमन क्वेश्चन सबका एक टेंशन में रहा कि सर मैम ये क्लास बंद तो नहीं हो जाएगी, ये मैम आप लोग आते रहेंगे ना, मतलब बहुत बड़ी टेंशन। और एक ही नहीं सर, मोस्ट ऑफ द पीपल सब लोग यही पूछते हैं कि मैम आप आते रहोगे। जिस दिन भी कभी बारिश हो जाती है ना सर, डर जाते हैं कि आज क्लास कहीं आप क्लास के लिए आ रहे हैं ना। मैंने कहा सर हम आते रहेंगे, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोग बने रहेंगे तो दिल्ली की योगशाला डेफिनेटली बनी रहेगी। आप लोगों का सहयोग चाहिए और ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा सर। तो आप अपार्टमेंट्स वालों को कराती हैं या? जी सर, अपार्टमेंट्स। थैंक यू सर। ग्रेट। तो जैसे हमने सोचा था कि हम 25 लोग जब तक एक जगह नहीं होंगे तब तक हम, तो हमने शुरू में 2-2, 3-3 लोगों से भी शुरू की हुई क्लास। नहीं, लोगों ने अच्छा ट्रायल बेस पे शुरू किया था। एक्चुअली कंडीशन ये है कि 25 से कम पे नहीं देंगे। और दूसरा, जैसे मैं पढ़ रहा था, आपने जो नोट भेजा था कि 1 लाख मिस्ड कॉल आए हैं, तो उसका क्या है वो? फिर दिल्ली के अलावा भी दूसरे राज्यों से हमें कॉल आए हैं, हमारे यहाँ भी आप शुरू कीजिए। तो अभी दिल्ली के जितने मिस्ड कॉल आए हैं सब अटेंड हो गए जी। आप लोगों के कोई सुझाव हैं? जैसे अभी बताया कि 30,000 लोग योगा कर रहे हैं, इसको 3 लाख तक कैसे लेके जाया जाए? माइक दीजिए, माइक। कि नई नई जगह पे लोगों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए? नमस्कार सर। सब लोग सोचते हैं कि हमारी ये क्लास बनी रहे और कुछ लोग टाइम की इश्यू की वजह से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं कि हमें इवनिंग की क्लास दो ताकि हम ये क्लास अटेंड कर पाएँ। तो ठीक है सर, ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इवनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाए, खासकर महिलाओं को इवनिंग में ज़्यादा पहला। यस सर, यस। ये जो कुछ फीडबैक मिला था और जो लिखित में भी आया कि आपके बाजू में भी वो कुछ कहना चाह रहे थे। 7 बजे ही चाहिए, 8 बजे या 9 बजे करके उन्होंने एडजस्ट किया है, इसलिए और भी ज़्यादा अट्रैक्शन। सर नमस्ते, मेरा नाम मीनू मिश्रा है। सर कोविड के दौरान मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी और मेरी क्लास में एक सरबजीत सर थे, वो फॉरेन से आए हुए थे, पंजाब में लुधियाना में उनकी किसी के घर मैरिज थी। उन्होंने मैरिज अटेंड की, तो उन्होंने जब वापसी उनकी थी तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया तो उनको कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी एक कमरे में उनको बंद कर दिया था। जब उन्होंने ऑनलाइन क्लास के लिए रिक्वेस्ट की तो वो बहुत खुश हुए। वो कह रहे मेरे अपने रिश्तेदार मुझे इतना पसंद नहीं कर रहे जितना आप सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो केजरीवाल जी स्पेशल आपका बहुत धन्यवाद करना चाह रहे थे और उन्होंने अभी भी रिक्वेस्ट किया कॉल करके कि ऑनलाइन क्लास हमारी फॉरेन में भी ली जाए। थैंक यू सर। एक दिन आएगा, क्या नाम है आपका? मीनू मिश्रा सर। मीनू जी, एक दिन आएगा कि दिल्ली की योगशाला के जितने आप लोग हैं ना, लोग आपके पीछे पागल हुए पड़े होंगे कि हमारी इंटरनेशनल क्लासेस इंटरनेशनल लेवल पे भी कराओ। आपकी यूनिवर्सिटी गोयल साहब एक दिन इंटरनेशनल सप्लायर बनेगी। अभी लेकिन अभी जैसा सर ने कहा कि पहले फोकस दिल्ली पे रखेंगे कि अभी 30,000 हुए और बहुत तेजी से हुए हैं 30,000 ये। हाँ, अभी 30,000 हुए हैं, 3 लाख लाना है। और कोई कुछ? मनवीर आगे। अच्छा ठीक है। हाँ नमस्कार सभी को, मेरा नाम रीना, मैं यमुना विहार की 2 क्लासेस लेती हूँ। एक ईस्ट आज़ाद नगर में क्लास लेती हूँ और मेरे पास रोज़ाना लगभग 100 से 125 लोग आते हैं क्लास लेने के लिए। यमुना विहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से ही योगा क्लासेस और होती थी पहले से ही। जब मैंने बोला कि मैं भी योगा कराऊंगी आप सभी लोगों को, तो महिलाओं ने बोला यहाँ पर तो योगा होती है, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि दिल्ली सरकार ने उनके लिए फ्री योगा क्लासेस और उनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी ये थी महिलाओं को कि वहाँ पर ये बोला जाता था योगा सुबह होगी 5 से 6 या 4 से 5 या 6 से 7, तो महिलाओं की समस्या थी, बच्चे भी देखने हैं, घर परिवार भी देखना है,
लेकिन जब पता लगा कि दिल्ली की योगशाला में मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और इस तरह से मैंने उन्हें बताया कि आप अपने हिसाब से समय बताइए, इतना खुश हुई वो महिलाएं। और आज आधे से ज़्यादा यमुना विहार मुझे गुरु माँ के नाम से जानता है। मैं 8 साल से एक पहचान बनाने की तलाश में थी, लेकिन दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी गुरुजनों का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली की योगशाला का, कि उन्होंने मुझे एक आर्थिक रूप से मजबूत किया और आज मुझे एक पहचान मिली है गुरु माँ की। जो 95 इयर्स की आती हैं मेरे पास, वो भी मुझे गुरु माँ कहती हैं, और उनकी बहू आती है वो भी मुझे गुरु माँ कहती है, और उनकी पोती आती है वो भी मुझे गुरु माँ कहती है। तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कितने लाभ दिए हैं दिल्ली की योगशाला ने। आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पास 95% बीमार लोग आते हैं, और आज की डेट में अगर मैं सबकी फ़ाइल बनाने लगूं तो मैं रात में और दिन में सिर्फ फाइल बनाती रहूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आराम लगा है उनको, मानसिक और शारीरिक। हर महिला को आराम मिला है। सारी महिलाएं इतना खुश रहती हैं कि भरी बरसात में घुटनों घुटनों पानी चल के भी वो गुरुद्वारे के बेसमेंट में क्लास लेने के लिए आई, और वहाँ पर उन्होंने पहले वाइपर से सफाई की। उन्होंने कहा मैडम आप आए हो ना तो हम ज़रूर आएंगे। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी लोगों का, दिल्ली सरकार का। धन्यवाद। जब आपने शुरुआत की थी तो काफ़ी, जैसे आपने थोड़ा सा इशारा किया, कुछ झगड़े टंटे भी हुए ग्राउंड पे, है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। उसकी कहानी नहीं सुनाई किसी ने। आप लोग सब गुडी चीज़ें बता रहे हो, थोड़ा सा बताओ नीचे क्या हुआ। हाँ नमस्कार सभी को, यामिनी मेरा नाम है। मेरी 2 क्लासेस चली, एक शादरा में और एक ताज एंक्लेव में, गीता कॉलोनी। तो वहाँ पर एक जेंट्स हैं, वो अगर अकेले अपने आप योगा करते हैं। तो मेरी स्टार्टिंग में 20-25 स्ट्रेंथ थी, और उसके बाद अब 40 क्रॉस हो गई है। 40 to 50 आते हैं वहाँ पे लेडीज़, और सारी ओल्ड लेडीज़ है जितनी है, एटलीस्ट मतलब 60+, 65+ लेडीज़ हैं। स्टार्टिंग में उनके हाथ भी नहीं हिलते थे, पैर भी नहीं चला पाती थी। पहले वो बैठी ही रहती थी कि मैम हमें बैठे बैठे आप सिर्फ प्राणायाम कराओ। लेकिन वो जब आधे लोगों को एटलीस्ट 40 में से 25-30 तो खड़े होके करते ही करते हैं। अब सारी 40 to 40 की लेडीज़ खड़े होके ही योगा करती हैं, और जो अलग से जो जेंट्स करते हैं उनको भी यही बोलते हैं कि आप यहाँ पर आओ, अलग से कुछ कर भी नहीं पा रहे हो अच्छे से, साथ में हम लोगों के साथ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो ग्राउंड के झगड़े वाली कहानी सुनाओ, कई लोगों ने मुझे बताई थी बीच बीच में। थैंक यू। मुजाहिद को दे दो, फिर इधर एक मैडम आगे सुना रही है, आप खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है, वो तब तक सुनाओ, माइक दूसरा वहाँ। सर मेरा फर्स्ट डे था 31 दिसंबर, तो मेरे को संजय झील में क्लास मिली थी। मैं, मेरे कोऑर्डिनेटर राजेश सर थे, हम गए। तो फर्स्ट डे था, तो सर ने बताया कि जैन साहब हैं, बच्चे अच्छे हैं। तो मैं कहा ठीक है सर, मैं आपके साथ एक दिन योग कर लेता हूँ, कल से आपकी क्लास ले लूँगा। अगले दिन संडे था, तो सर मैंने क्लास ली। तो उनमें से एक बुजुर्ग उठे कि कौन है, कैसे, कि दिल्ली गवर्नमेंट से। तो अरविंद सर के लिए काफ़ी भला बुरा बोला करके वो उन्होंने बंद कर दिया। सर सडनली वक्त पहिया घूमा, उसी संजय झील में कुछ महिलाएं आई, वो सारी उनके ही परिवारों से हैं, जो उन्हीं के परिवारों से हैं, और डेली सर वो क्लास ले रही है। सर एक किस्सा और, थोड़ा 1 मिनट लूँगा सर। एक तरफ जैसे हमारे साथियों को स्टैंड ही नहीं लगाने दी, लगातार कुछ ना कुछ बोला। दूसरी तरफ सर एक बीजेपी की निगम पार्षद हैं रजनी पांडे, अशोक नगर वार्ड से सर, वो खुद मेरे पास सर क्लास ले ली नागार्जुना अपार्टमेंट में। बहुत बढ़िया। ये बीजेपी वालों को भी ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन वगैरह कराने की, काफी जरूरत है इनको। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है। मैं सेक्टर 22 में और सेक्टर 21 में रोहिणी के में क्लास देती हूँ, जिसमें कि सर सेक्टर 22 में जो है वहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ें 55+ की हैं, और वो दिल्ली योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। जब मैंने क्लास शुरू की थी तो वहाँ पे नाम तो 25 का था, बट वहाँ पे मुझे सिर्फ 3 to 4 लेडीज़ मिली थी। उन्होंने कहा कि नहीं हम योग संस्थान से हैं, हम आपका क्यों करें, और स्पेशली केजरीवाल सर का क्यों करें। वो भी बीजेपी की थी। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली आप ये स्टैंडर्ड्स लगाते हो, आप यहाँ पे प्रमोशन करने आ रहे हो, यहाँ पे अभी मतलब वोटिंग का टाइम है, चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ प्रमोशन के लिए क्लासेस दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म होंगे क्लासेस भी बंद हो जाएंगी। देन मैंने उन्हें कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप डायरेक्ट केजरीवाल सर से बात कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर भी मेंशन है, नाम मेंशन है, वो इतने नॉर्मल सर हैं कि आप डायरेक्ट उनसे जाके मिल सकते हैं।
हम खुद भी मिलते हैं, हमारी खुद की भी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े अपर लेवल पे हैं तो हम लोगों से बात नहीं करेंगे, वो सभी से बात करते हैं। और अब इतनी अच्छी बात है कि वहाँ पे योग संस्थान से सारी लेडीज से इतनी हो गई कि 25+ आती हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट एक आप कुछ आपके पीछे एक लड़की माइक पे कुछ कहना चाह रही थी। ओके चलो, गुड इवनिंग सर। ठीक है, शी इज द लास्ट। माय नेम इज शीतल। थोड़ा माइक पास करके बोलो शीतल। माय नेम इज शीतल एंड आई एम टेकिंग क्लास इन सरिता विहार एंड वन इन खाटू श्याम पार्क इन बदरपुर। तो सर जब मैं फर्स्ट क्लास लेने गई थी तो मैंने 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और वहाँ पर ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का था इशू, वही बीजेपी एंड ऑल। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया कि मुझे यहाँ क्लास लेनी है, ऐसे ऐसे करके। मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, मुझे स्टैंडी का बहुत इशू आया, 1 वीक बहुत इशू आया। स्टूडेंट्स ने बोला, जो कोऑर्डिनेटर थी, मैम आप ऐसा करो, अभी ना फ़ोटो ले लो, सर को भेज दो और बंद कर दो स्टैंडी, यहाँ पे बहुत इशू होगा ऐसे। हमने 1 दिन किया, 2 दिन मैंने अपने सीनियर्स को बताया, सर ने भी उनको समझाया, हमने आधा घंटा की। वहाँ पे क्या होता था, मेरी क्लास 6 to 7 होती थी। जैसे ही पता चला कि 6 o'clock हुए, लाइट ऑफ कर देते थे वहाँ पे पार्क में, अंधेरा होता था कि मतलब हम फ़ोटो क्लिक ना करें, स्टैंडी किसी को ना दिखे। लेकिन 1 हफ्ते 15 दिन में उन्हें रिजल्ट मिलने लगा, 3 से 6 हुए, 6 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, अब 25+ स्ट्रेंथ चल रही है वहाँ पे। अब वो बोलते, मैम स्टैंडी तो क्या, आप कुछ भी ले आओ, हम अपने आप देख लेंगे, आप क्लास कराओ। बहुत बढ़िया। एक मनीष ने बात इधर बोली थी, मनीष जी, मनीष नाम था ना आपका, इन्होंने बोली थी कि इनके अंदर भी चेंज आए। आप में से और किसी ने वो शेयर किया, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, कोई अपने अंदर आया, कोई ऐसा चेंज जो इस कोर्स के दौरान या योग कराने के दौरान आपको अंदर से फील हुआ हो, आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज? नमस्कार सभी को। सर पहले तो मैं जस्ट 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। योग से मिली मुझे एक नई पहचान, पूरे हुए मेरे आत्मनिर्भर बनने के अरमान। एक घरेलू नारी को कामकाजी महिला बना डाला, 40 की उम्र में एक सम्मानीय पेशा दिला डाला। दिल्ली सरकार का हार्दिक धन्यवाद, आपने पूरे किए हम सभी के जज्बात। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात और शेयर करना चाहूँगी, मैं 3 क्लासेस ले रही हूँ और लॉरेंस रोड में एक क्लास चलती है, वहाँ पे एक आंटी आती हैं। हमें योग में सिखाया गया है कि योग की जो परिभाषा दी गई है या हेल्थ की परिभाषा दी गई है कि उसमें स्वास्थ्य का भी लाभ होता है, मानसिक लाभ भी होता है, आध्यात्मिक लाभ भी होता है और आपका सामाजिक लाभ भी होता है। एक आंटी आती हैं, शी इज़ अराउंड 70, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और डॉटर्स दोनों आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड हैं। अकेली रहती थी वो। ऑब्वियसली अकेला जो बंदा रहता है, ना तो उसका खाने का मन करता है ना उसका पीने का। वो बोलती थी रात रात भर मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। जब से फर्स्ट डे से उन्होंने क्लास ज्वाइन की थी, आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की है। उनकी डॉटर्स मुझे कॉल करके थैंक यू बोलती हैं कि हमारी मम्मी में इतना चेंज आ गया, वो खुश रहती हैं। तो ये उनका सामाजिक लाभ है कि वो हम लोगों के साथ आके जब वो योगा करती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और हमेशा यही बोलती हैं कि बस ये क्लास बंद मत करना आप लोग। थैंक यू वेरी मच सर। वो उधर पीछे, हाँ एक माइक, ऐसा बार बार खड़े हो रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश सिंह सोलंकी। एक मेरी बेटी है जो पिछले 6 साल से लाइलाज बीमारी से जूझ रही है, सोजिया की बीमारी से, और मैंने बहुत जगह योगा का उससे कराया है। पतंजलि में कराया है, मोरारजी देसाई संस्थान है ये गोलमार्ग गोल डाकखाने में, यहाँ भी कराया है और भी जगह कराया है। अगर आपके यहाँ कोई एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट हो सोजिया की बीमारी के लिए। नहीं, 1 मिनट पूरी होने दो, पूरी होने दो उनकी बात। लाइलाज बीमारी है, काफ़ी इलाज मैंने बाहर बेंगलोर बॉम्बे तक कराया है, योगा भी कराया है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी कराया है। इस टाइम इलाज मेरी बेटी का एम्स से चल रहा है और मेरी बेटी दिल्ली के टॉप 100 बच्चों में पढ़ने में। अभी दिल्ली का रिजल्ट नहीं आया CBSE बोर्ड का, 2 पेपर उसने एम्स से एडमिट होने के बाद दिए 10th क्लास के। मेरी बेटी अभी भी 93% लेके चल रही है और उसके लिए मैं योगा के एक्सपर्ट टीचर की जरूरत है। मुझे कोई एक्सपर्ट टीचर हो योगा का। मैं कमलेश जी से रिक्वेस्ट करूं जी हैं, अभी इसके बाद आप इनसे मिल लेना जी। ये टीचर हैं योगा के।
ठीक, थैंक यू। अपने अंदर परिवर्तन का लास्ट इनपुट। इतने सारे, चलो हाँ लास्ट वो हो गया बस। सभी को प्रणाम। सर, जैसा कि आपने कहा कि अपने ऊपर चेंज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज से 11-12 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और वो इतना सीवियर था कि उसके बाद मेरे 5 ऑपरेशन हुए सर। और उन ऑपरेशन के बाद फाइनली मेरे आई में एक डिफेक्ट रह गया। जब मैं ऊपर देखता था तो उसमें डबल इमेज आती थी। और सही में मैं थैंकफुल हूँ इस योग पद्धति का, और सबसे पहले अपने जितने गुरु हैं उन सभी का, कि वो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास उसके सारी रिपोर्ट्स हैं। वो दिसंबर के सेकंड लास्ट वीक में जब मैंने मिरर के सामने देखा तो वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। तो ये इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिली। देन उसके बाद इतने साल जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, एम्स में अभी सर ने सर हैं, उन्होंने कहा कि मेरा एम्स में मेरी बेटी का इलाज चल रहा है, तो एम्स में मेरा इलाज चल रहा था। एम्स के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर विष्णु, उन्होंने फाइनली कह दिया था इसका फर्दर इलाज मत करवाना, अदरवाइज ये केस बिगड़ जाएगा। लेकिन सर, योग के थ्रू ही मेरी वो प्रॉब्लम दूर हुई है। और उस योग के थ्रू ही अब मैं कहूँगा कि मेरी 2-3 क्लासेस हैं किदवई नगर में, लाजपत नगर में, और एक क्लास तो टोटली फीमेल्स की है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ मोर देन 35 है, और लाजपत नगर में 28 के आसपास रहती है, 28 इवन 30+ भी हो जाती है कई बार। उसमें कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो किदवई नगर की क्लास है, वो टोटली फीमेल्स की क्लास है, उनमें भी कईयों की प्रॉब्लम्स, थायराइड की हो गई, यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम्स, सब ठीक हुई हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सभी को फायदा हो रहा है इससे। बस आखिर में सर, आप लोग इनसे, जो आप लोग जैसे आप 2-3 क्लास ले रहे हो, कई लोग 1 क्लास ले रहे हैं, मैं कुछ योगा क्लासेस में सुबह सुबह गया था, तो एक सोसाइटी में गया, वहाँ पर अपना ग्रुप बना रखा है उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप, उसी में वो वेकअप कॉल लगा देते हैं, तो सबको घर में अलार्म पहुँच जाता है। तो वैसे कुछ प्रैक्टिसेस एक दूसरे से, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग एक्टिव हैं, मतलब आपने अपने अपने जितने भी आपके प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बना रखा है, और उनको आप अलार्म देते हो सुबह सुबह? जरूरत नहीं पड़ती है, पहले ही रेडी रहते हैं। चलिए, थैंक यू। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर अपने शब्दों से हमें उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं है, और फिर भी हम लोग मिल रहे हैं अपनी योगशालाओं की विवेचना करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए। उससे ये जाहिर है कि ये योगशाला जो है ये हमारे लिए साल में 1 दिन की औपचारिकता नहीं है, वी मीन बिजनेस, और हम इसको आगे बहुत बड़े स्तर के ऊपर ले जाना चाहते हैं। आज आप लोगों से फीडबैक लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की आपके अंदर जो अभी एनर्जी दिखाई दे रही है और आपके चेहरों पे जो खुशी नज़र आ रही है, उससे ही मुझे लगता है कि आप लोग जो योग सिखा रहे हो उसमें आप लोगों को मज़ा आ रहा है और ये सक्सेसफुल है। अगर आपको वहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ मिलती और अगर आपको वहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही होती और आपको वहाँ पे अच्छा लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, तो मैं समझता हूँ कि ये इस हॉल के अंदर इस किस्म की एनर्जी भी नहीं होती। बहुत सारे प्रश्न होते कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी नज़र आई कि जो भी आप लोगों की ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट सिखाई गई हैं शायद, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि पहले दिन दिक्कत आई, दूसरी पार्टी के लोग आ गए, उन्होंने रोका, लेकिन आपने जिस पेशेंस के साथ, जिस धैर्य के साथ उसको हैंडल किया, वही असली तरीका है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, और धीरे धीरे आप लोगों ने सबका मन जीतना चालू किया, तो ये बहुत अच्छा है। पिछले एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, जो हमारी सबसे बड़ी हर्डल थी और हमारे मन में भी एक शंका थी कि
कि क्या हम इसका मॉडल तैयार कर पाएंगे क्या, क्योंकि एक बार मॉडल तैयार हो जाए ना, पहली एक क्लास कर लो, फिर 1 × 100 और 1000 तो हो जाती है। वो पहली कुछ क्लासेस करनी, पायलट सबसे मुश्किल होता है, वो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। खासकर मैं आपके वाइस चांसलर साहब को और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। पहली बार इस किस्म का एक्सपेरिमेंट जो जनता में सरकार फ्री योगा क्लासेस करा के जनता के बीच में ले जाना चाहती है, इस किस्म का एक्सपेरिमेंट देश में पहली बार हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अब अपना मॉडल बन गया है, इस मॉडल को अब बस रेप्लिकेट करना है। तो आज मान लीजिए 500-600 क्लासेस हो रही हैं, अब इसे अपने को 5000 10,000 क्लासेस तक ले जाना है। तो उसका भी मैं सबके साथ बैठ के हम लोग प्लान बनाएंगे, और हमारा ये मकसद है कि ये जो संख्या आज 30,000 है, ये कम से कम लाखों तक पहुँचे। लाखों तक भी हमें कोशिश ये करनी है कि दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर हर कुछ कदम के ऊपर एक योगा क्लास चल रही हो, ताकि आसपास रहने वालों को पता हो कि अगर मुझे जाना है तो मेरे पास एक क्लास चल रही है। तो उनके पास वो फिर जैसे 3 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, देखा देखी फिर लोग आना चालू कर देते हैं। जितने आप लोगों ने बताया कि शारीरिक और मानसिक लाभ हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आज आप अच्छा योगा सिखा रहे हो तभी हो रहे हैं। योग विद्या तो अच्छी है ही है, हजारों साल पुरानी विद्या है, भारत ने पूरी दुनिया को दी है, तो विद्या तो अच्छी है ही है। लेकिन अगर सिखाने वाला अच्छा नहीं हो तो फिर फायदा नहीं होता, फिर वो इफेक्ट नहीं आते। इसका मतलब आप लोग सिखा भी अच्छे रहे हो, और आप लोग अच्छा सिखा रहे हो, इसका मतलब ये सब लोग आपको अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो अपना मॉडल तो सब तैयार हो गया है। दिल्ली एक अर्बन एरिया है, शहर है, और शहरों में आदमी की ज़िंदगी बहुत लोनली होती है, अकेली होती है, इंटरपर्सनल टेंशन बहुत होते हैं। बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। और बहुत लोग अकेले, खासकर बूढ़े लोग तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे उनको तवज्जो नहीं देते। ऐसे में कुछ लोगों के आपके एक्सपीरियंसेस से मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज़िंदगी में कोई नहीं है, उनको ये योग क्लास मिलती है जहाँ पे उनको इज्जत मिलती है, और जहाँ पे आप उन लोगों से बैठ के 2-4 प्यार की बातें कर लेते हो, अपनी बातें कर लेते हो। हैं जी? हाँ, हंसने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें आदमी आदमी से बात करने को तरस जाता है। तो वो भी मैं समझता हूँ कि लोगों का अपनी भड़ास निकल जाती है, लोगों का अपनी वो निकल जाती है। तो एक तरह से वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंदर लोगों को यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। तो आपसे आज बहुत अच्छे इनपुट्स मिले, मुझे ज़्यादा सीखने को मिला। अब हम सारे बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से योग को हम 100 टाइम्स 1000 टाइम्स और दिल्ली के अंदर ले जा सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो आपने इसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच।